Assalamu alaikum, my dear students. This is class 11th and today's topic is motion of center of mass. आपको पता है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. तो उसमें एक दो लेक्चर्स हमने दिए हैं सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पॉइंट दैट इज मोशन ऑफ center of mass. Now let us start. We know that if we have a system of n particles, then consider the system of n particles, combination of n particles whose center of mass is RCOM, position vector of the center of mass. We have gone through this center of mass R. The relation for it is M1 R1 plus M2 R2 plus dash plus Mn Rn whole divided by M1 plus M2 plus M3 plus dash dash up to Mn. This equation is familiar to you. We know this equation. It is the equation for finding the position vector of the center of mass. Or I can write, multiply it here, M1 plus M2 plus M3 plus dash dash plus Mn into RCOM. It's equal to M1 R1 plus M2 R2 plus dash dash plus Mn Rn. ठीक, मल्टीप्लाई किया मैंने. नाउ जो ये आप देख रहे हैं M1 plus M2 plus M3, what it is the total mass of the system. So we write it equal to capital M. Capital M is capital M into RCOM. It is equal to M1 R1 plus M2 R2 plus dash dash plus Mn Rn. ठीक, Mn Rn. Yes, in fact in vectors ठीक है. Now differentiating this equation with respect to time. तो आप लिखो differentiating both sides with respect to time. ठीक है. So we will write d by dt of m RCOM, it's equal to d by dt of M1 R1 plus M2 R2 plus dash dash plus Mn Rn. ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से कि बोर्ड छोटा है. Be quick. Now what is this M? It will go outside the differentiation here also. So we will rewrite the same equation like this. तो आप इस तरह लिख सकते हो, M बाहर आएगा d by dt of RCOM. It's equal to M1 d by dt of R1 plus M2 into d by dt of R2 plus dash dash. ठीक है. Now what is dr by dt? It is V. And d by dt of RCOM,
It means velocity of center of mass. Velocity of center of mass. So I will write m VCOM. It will be equal to m1 d by dt of r1, that is v1, plus m2 d by dt of r2, it is v2, plus dash dash plus mn vn. ठीक है, ठीक है. और VCOM can be written as m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus dash dash whole divided by m1 plus m2 plus dash dash up to mn, whole divided by m, that is m1 plus m2 plus 6. This equation is required to find the velocity of the center of mass. Now, once we find the RCOM, we can find the velocity of center of mass of the system of n particles. So please note it, this is very important equation. Say this is equation A. ठीक है. Here we can also find like this VCOM along x-axis, x component. It can be V1, M1 V1 along x-axis plus M2 V2 along x-axis plus M3 V3 along x-axis, etc. divided by M1 V1, M1 plus M2 plus dash dash plus Mn. And VCOM, velocity of center of mass along the y direction, it will be m1 v1 along y axis plus m2 v2 along y axis, along y axis plus m3 v3 along y axis plus dash dash whole divided by m1 plus m2 plus dash dash up to mn. ठीक है, यानी हमने एम VCOM एम यहां डिवाइड किया, m1 प्लस m2 इसके बदले लिखा, तो VCOM या तो यहां इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं. Now if it has components, if velocity has components along x-axis, along y-axis, then we can find like this. ठीक है. So this is one equation, VCOM. Now again, differentiating this equation. So we will write here, you please note it. Now you rewrite the equation VCOM. It will be equal to m1 v1 plus m2 v2 plus dash dash plus mn vn divided by m, और m1 plus m2 plus up to mn. ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको वापस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां से ये जो है इट्स इक्वल टू m, so we write it here m into VCOM. It will be equal to m1 v1 plus m2 v2 plus dash dash up to mn vn. Now differentiating the same equation again, differentiating above equation with respect to time, both sides. So we will have d by dt of m VCOM. It will be equal to d by dt of m1, ठीक है, m1 v1 plus d by dt of m2 v2 plus dash dash up to mn. और we can write m बाहर यहां आएगा, m into d by dt of VCOM.
it will be equal to m1 into d by dt of v1 plus m2 into d by dt of v2 plus dash. So what is dv by dt? It is acceleration, and this is velocity of center of mass. So dv by dt com, it is the acceleration of center of mass of the system. So ma com, it will be equal to m1. What is v1? It is the velocity of the particle of the system. So it is d by dt of v1 is a1 plus m2 a2 plus dash plus mn an whole divided by 9. It's here. Now ACOM will be calculated as ACOM, acceleration of center of mass. तो मैं यहां लिखूंगा, I will write it here. ACOM is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 plus dash divided by m1 plus m2 divided by this capital M, and it will be m1 plus m2 plus m3 plus dash up to mn. So this is one more expression related to acceleration of center of mass. Acceleration of center of mass. Now say this is also an important equation. Say this is equation B. इक्वेशन बी, ठीक है. Now ACOM, it will be m1 a1 plus m2 a2 plus dash up to mn an divided by m. Capital M, or capital M can be written as m1 plus m2 plus m3 plus dash up to mn. Now again we will write it like this. इसके बदले हम m लिखेंगे, m into ACOM, it will be equal to m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 plus dash. ठीक है. Now what is this m1 a1? A1 is acceleration of the particle and m1 is mass. So it is F1 plus m2 a2, mass into acceleration using Newton's second law, F2 plus dash plus Fn. ठीक है. Now what about this? M is total mass of the system, A is acceleration of the center of mass. Now if we find this F1 plus F2 plus F3, it should be the total force acting on the system, or M into ACOM should be equal to FEXT. ठीक है. Total external force. So total external force is equal to mass times acceleration of the center of mass. ठीक है. Very important point. FEXT, it is written in place of M into ACOM. यानी जो सिस्टम पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, that is acting on the system, that is acting on the center of mass of the system of particles. In other words, external force is mass times acceleration, but acceleration of what? Acceleration of center of mass of the particle. This is very important point. FEXT is M into ACOM. ठीक है. Or FEXT, because FEXT is equal to F1 plus F2 plus F3 plus dash plus Fn. This is total force and it should be written as FEXT. But this F1 plus F2 is MACOM. It means FEXT, external net force. It is mass times total acceleration. Acceleration of the center of mass. Very important point. Now again we will see if EXT, अगर मैं EXT इसका 0 लूंगा, external force is 0,
नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, वी हैव फाउंड R, we have found V, and we have found this A, acceleration of the center of mass and the total force acting on the center of mass. Now one more point is if F ext is equal to 0, ठीक है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 लग रहा है, यानी net external force is 0. There is no net external force. So, does it mean that implies Fext, it is equal to M into A COM. When this is 0, it means M into A COM, it is equal to 0. As M can't be 0, so should we write ACOM equal to 0? Yes. It means acceleration of center of mass is equal to 0. यानी जब नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तब हम ये कहेंगे कि वो जो सिस्टम है उसका जो सेंटर ऑफ मास है, वो सेंटर ऑफ मास उसकी एक्सेलरेशन 0 है, वो सेंटर ऑफ मास जो है उसकी एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि Fext भी आपने बताया F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश, इट मीन्स if Fext is 0, it means 0 equal to F1 plus F2 plus F3 प्लस डैश प्लस Fn। तो इसका ये मतलब है कि टोटल फोर्स जो है, टोटल फोर्स acting on the system of particle, on the center of mass of the system of particles, if it is 0, it means the total force acting on the whole particle is 0. So it also means that F1, F2, F3 dash, क्या इसका ये मतलब है कि F1 भी 0 है, F2 भी 0 है? नो, यानी इनका जो रिजल्टेंट है, हो सकता है F1 इस डायरेक्शन में लग रहा हो, F2 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, यानी जो इनका रिजल्टेंट है दैट इज 0. इट नेवर मीन्स दैट F1 इज 0, इट नेवर मीन्स दैट F2 इज 0, ठीक है, इट नेवर मीन्स दैट F3 इज 0 इफ Fext इज 0. तो इसका ये मतलब नहीं है कि F1 यानी इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे फोर्स हो सकता लग रहा हो, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स हम कह रहे हैं कि 0 है, यानी जो इनका रिजल्टेंट है दैट इज 0. इट डजंट मीन दैट F1 इज 0, F2 इज 0, इट डजंट मीन दैट. या हम इससे भी क्लियर ये पॉइंट कर सकते हैं, वी कैन क्लियर इट आउट ऑफ दिस इक्वेशन. अगर Fext 0 है तो ये मास इंटू ACOM 0 है, ACOM 0 है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज 0, ठीक है. इट नेवर मीन्स दैट, क्योंकि आपको ये पता है MACOM, ठीक है, इट इज इक्वल टू M1A1, क्योंकि F1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 प्लस MNAN. यहां से भी ये क्लियर हो गया है, क्लियर हो सकता है कि अगर ACOM 0 है, ये वाला 0 है, तो यहां ये पूरा 0 है क्योंकि Fext 0. तो ये M1A1 प्लस M2A2 प्लस डैश प्लस MNAN इज इक्वल टू 0, ठीक है. बट इट नेवर मीन्स दैट A1 इज इक्वल टू 0, इट नेवर मीन्स दैट A2 इज इक्वल टू 0, A3 इज इक्वल टू 0. इसका यह मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स की एक्सेलरेशन भी 0 है. नहीं, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जो 0 है, सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स 0 लग रहा है. तो इसका यह मतलब है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द center of mass of the system of particles is 0, but individual particles may have the acceleration. ये इसका मतलब है, they may have the acceleration, ठीक है.
तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट इज ACOM इज 0. Acceleration of the particle about the center of acceleration of the system of particles about the center of mass is 0. It means क्या इनकी velocity 0 है? No. VCOM it is equal to constant. ठीक है, velocity of the center of mass of the system of particles is constant if external force, net external force is equal to 0. Their velocity is constant. ठीक है, the velocity of the center of mass is constant. ठीक, now we can find if velocity of center of mass is constant, we can write an important equation. This is m VCOM, it is equal to m1 v1, अभी आपने लिखा, प्लस m2 v2 प्लस डैश डैश. ठीक है, तो यहां mVCOM it is momentum P of the center of mass, P momentum of the center of mass, PCOM. ठीक है, what is m1 v1? It is P1 plus P2 plus P3 plus dash dash. समझ में आया? तो ये देखिए, now what is this PCOM? Momentum of the center of mass of the system of particles. Now if VCOM is constant, if net external force is 0, if FEXT, if it is 0, it means ACOM, it is 0, it means VCOM, it is constant. It is constant. So PCOM, it is constant. So it means the P1, the sum of the whole momentum of the system of n particles plus dash dash is equal to constant. Is equal to constant because mass into velocity. This is constant, this is also constant, and we multiply is constant. So this is P is constant. Total momentum of the system of particles is constant. And this is an important law which is called the law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. We have gone through it in the previous chapter, but here we are dealing it with respect to center of mass. So law of conservation of linear momentum is followed by the center of mass of the system of n particles. Please you write down this equation. ठीक है. Now this equation, this point can be written like this also. Now P is equal to P, momentum of center of mass, it's equal to m into VCOM. इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए with respect to time, differentiating both sides with respect to time. It will be dP by dt, center of mass. It will be equal to d by dt of m VCOM. It will be m बाहर आएगा, m d by dt of VCOM. ठीक है, VCOM, and it is equal to m into ACOM. ठीक. So but MACOM is equal to force, net force external, so FEXT, it is equal to d by dP by dt. P is momentum of the system of the center of mass. Again for isolated system, external force 0 लेंगे, उसको isolated system बोलते हैं. If EXT equal to 0, so what we write, d by dt of PCOM, it's equal to 0.
For an isolated system, net external force equal to 0, so dp by dt equal to 0. When d by dt of p is 0, it means p is constant. It means p is constant. So p com, momentum of the center of mass of the system of particles, it is equal to constant. Again, it is called law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. Okay. So from this point we concluded that if the acceleration of the center of mass is 0, then it never means that acceleration of the individual particles is 0. इंडिविजुअल पार्टिकल्स की एक्सेलरेशन हो सकती है, लेकिन जो नेट एक्सेलरेशन है अबाउट द सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू 0. दैट्स इक्वल टू 0 इफ एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0. इसी तरह एक्सटर्नल नेट फोर्स इफ अगर 0 है तो इसका यह भी मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल बॉडीज पे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे फोर्स 0 लग रहा है हर एक पार्टिकल पे. दैट्स नेवर पॉसिबल. उनका रिजल्टेंट 0 है. ठीक है, ठीक है. दूसरी बात यह कि अगर हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 लिया, इसका यह मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी कांस्टेंट है. नो, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट बिकॉज ए इज 0. अब ए COM इज 0. इट मीन्स दैट V1, V2, V3 they are not constant, but VCOM is equal to constant. This is very, very important point. Now we will have a numerical problem about the same. तो आप एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिख लीजिए. वेरी सिंपल. दिस इज फ्रॉम SC वर्मा. एक मिनट. Yes. तो लिखो आप क्वेश्चन 1. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. क्वेश्चन लिखो 1. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ center of mass of the system of particles shown below. System of particles shown below. Yes, we have 37 degree here, mass is here 1 kg, 1.5 meter per second, this is 1 kg. दूसरी है here it is 1.2 kg, 0.4 meter per second. This is figure B. Third one is it is 1.5 kg, 37, 1 meter per second, 1.5 kg, 37 degree. Figure C. Figure D, 0.5 kg, 3 meter per second. Then it is 2 meter per second. Here 1 kg. Again 37 degree. This is figure D. This is figure E. आप इसको बनाइए. ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, 5 पार्टिकल्स इसमें है. एक है M1 यहाँ, उसका मास 1 kg है.
दूसरा M2 it's having 1.2 kg. Third one is 1.5 kg M3. M4 is 0.5 kg. M5 is 1 kg. ठीक है. हॉरिजॉन्टल के साथ उनकी जो वेलोसिटी है, इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो भी गिवन है. इसके यहां वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकंड. यहां इसकी वेलोसिटी है 0.4 मीटर पर सेकंड. हियर इट इज 1 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड एंड 2 मीटर पर सेकंड. दो चीजें. तीसरी बात यह है कि ये दिखा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में है. हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 37 डिग्री. ये वर्टिकली एक्ट हो रहा है, तो ये 37 डिग्री ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ. तो यहां ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है, एंगल 0 है यहां 37 डिग्री एंड हियर. यानी कि डायरेक्शन भी इनको वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखा रहा है. तो हमको ये बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा उसका आपको VCOM निकालना है. तो पहले आप ये प्रॉब्लम जो है इसको नोट कर लीजिए. इट इज फ्रॉम SC वर्मा, पेज नंबर 160. यू कैन सी इट देयर. ठीक है. तो पहले क्वेश्चन हमने लिखा. क्वेश्चन आप देख लीजिए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नाउ वी विल गो वन बाय वन. ऐसे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वी विल सी इट सॉल्यूशन में. आप इस तरह इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन में. ठीक है. हमारे पास VCOM है. पहले इक्वेशन आप लिखो. इट विल बी M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस डैश डैश डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3. यहां 5 पार्टिकल्स, तो M5 पे चलेगा. ठीक है. नाउ M1 M2 M3 दे आर गिवन. ठीक है. तो V1 V2 V3 क्या है? V1 V2 V3 अभी मैंने बताया आपको. या ये जो है आप इसको ऐसे निकाल सकते हो. ये जो V1 है, V1 is here, but we have to take X, V1X, V2X, V3X, X component. यानी कि हम यहां एक तरीका ये कर सकते हैं, VCOM जो है पहले हम V1X निकालेंगे, V2X निकालेंगे, V3X. we will find VCOM along X axis. ऐसे मैं निकाल सकता हूं. VCOM along X direction, it will be M1 V1 along X direction plus M2 V2 along Y direction plus dash dash. ठीक है. Divided by M1 plus M2 plus dash dash. पहले आपको समझना चाहिए हम इसको क्या करेंगे. और VCOM सेंटर ऑफ मास का निकालेंगे along Y axis. It will be M1 V1 along Y direction plus M2 V2 along Y direction plus dash dash divided by M1 plus M2 plus dash up to 5. VCOM along X axis, VCOM along Y axis जब ये निकलें तब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे. यानी अगर हमें ऐसे निकालना हो VCOM, it will be equal to under root of VCOM along X axis whole square plus VCOM along Y axis. ऐसे क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसे X axis Y axis, इन दो के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा. तो हम वो रिजल्टेंट जिस तरह हम निकालते हैं अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा, थीटा 90 डिग्री है, तो ये हम निकाल सकते हैं. ठीक है. दूसरा तरीका वो भी ही है, लेकिन हम एक साथ इसको करेंगे. we will introduce I and J. I is the unit vector along X axis and J is the unit vector along Y axis. So please you note this. After that we will show the procedure to you.
जल्दी करो। चलिए नाउ तो कैसे हम करेंगे इसको, प्लीज सीट। पहला केस जो है इक्वेशन, ये फिगर ए जो है इसको नाम है, देखिए दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये जो वेलोसिटी का वेक्टर है ये यहां पे है, इट्स हियर 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां 37 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक। नाउ दिस कैन बी रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट, एक इसको यहां होगा, एक इसको यहां होगा। तो बताइए यहां कौन सा कंपोनेंट होगा? अगर ये वेलोसिटी v है, इट विल बी v cos 37 डिग्री एंड v sin 37 डिग्री। तो v कितना है? 1.5 cos 37 डिग्री, यहां मैं लिखूंगा cos 37 डिग्री। तो यहां 1.5 sin 37 डिग्री, ऐसे लिखना है, ठीक है। देखिए 1.5 जो है वो इस क्वाड्रेंट में थी, इसको हमने रिजॉल्व किया तो इसका एक कंपोनेंट यहां होगा, एक यहां। एंगल 37 डिग्री है, अगर वेक्टर ए होता है तो उसका कंपोनेंट क्या होता है? ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा, थीटा कितना है? 37 डिग्री। तो मैं यहां निकाल सकता हूं, इट विल बी इक्वल टू, आपको वो ट्रायंगल याद होगा, मैजिक ट्रायंगल जो यहां 37 डिग्री वाला, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी जिसको कहते हैं। 37 के अपोजिट में 3 होता है, बेस 4 एंड इट इज हियर 5। तो हमको cos 37 डिग्री चाहिए। cos 37 is base by hypotenuse 4/5, so it will be 1.5 into 4/5, ठीक है। So 1.5 into 4/5, that is 5 3s are 0.3, तो it is 1.2, ठीक है। तो यहां कंपोनेंट 1.2 आ गया। पहले केस में, पहले फिगर में आप समझ लीजिए, दूसरे फिगर में आप खुद कर सकते हैं। तो आ गया ये 1.24 इंटू 0.3 हो गया 1.2, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट। यहां देखिए इट विल बी 1.5 इंटू साइन 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, सो इट विल बी 5 1s are 5 3s are 0.9, ठीक है, 0.9। यानी y कंपोनेंट इसका, यानी x कंपोनेंट इसका 1.2 है, y कंपोनेंट इसका 0.9 है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह रीजन है यहां, अबव इट इज हियर, अगर मैं यहां डायरेक्शन बताऊंगा इट इज j, इट इज i, लेकिन यहां जो है इट इज -i एंड इट इज -j, ठीक है। दिस इज हियर j पॉजिटिव, नेगेटिव j, पॉजिटिव i, नेगेटिव i, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जो इसके कंपोनेंट दो हैं, ये भी नेगेटिव लेना है, ये भी नेगेटिव लेना है, ठीक। तो यानी ये m1 है, ये 1 kg है, इसके लिए v1x जो है, v1x जो है दैट इज -1.2, और v2x जो है दैट इज 0.9 माइनस। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, v1 विल बी इक्वल टू v1, जो आप इक्वेशन लिखते हैं ना, m1 v1 प्लस m2 v2। अब उसके दो कंपोनेंट है, v1x दैट इज 1.2, v2 v1x इट इज 1.2, v1y दैट इज 0.9। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, v1 विल बी इक्वल टू, वेक्टर में इट इज नेगेटिव ऑफ 1.2, v1 इसको मैं i लिख सकता हूं, और यहां माइनस नेगेटिव ऑफ 0.9, इसको मैं j लिख सकता हूं, ठीक है। प्लीज नोट इट। ठीक, प्लीज नोट इट। समझ में आया आपको ये कि मैंने क्या किया? अब इसके बाद हो गया पहला केस m1 के लिए, ठीक है। तो हम m1 v1 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जरूरत है m1 v1, ठीक है।
इट विल बी इक्वल टू, अब ये नहीं है V1 x नहीं है, ये अभी टोटल में है क्योंकि इसका x कंपोनेंट और y का वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा, तो ये V1 है, M1 V1, इट विल बी -1.2 इंटू 1, ऐसे इसको 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी 1 इंटू -1.2 -1 इंटू 0.9, इसको यहां I है और इसको यहां J है, so it will be -1.2 I minus 0.9 J. Please note it. It is M1 V1. क्योंकि सेंटर ऑफ मास में हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो उसमें M1 V1 की रिक्वायरमेंट है, M1 V1, ठीक है, प्लीज यू नोट इट। तो ये पहली फिगर के लिए हमने बताया, तो इसको आपको नोट करना है। साइड में मैं लिख सकता हूं इसको M1 V1 इट्स इक्वल टू -1.2 I minus 0.9 J, ठीक है। नाउ सेकेंड फिगर जो इसकी थी, जो इसका सेकेंड पार्टिकल था, दैट इज 1.2 kg 0.4, ऐसे 1.2 kg इसकी वेलोसिटी है 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फिगर बी है, तो इसका मतलब है M2 इज हियर 1.2 kg, ठीक है। अब इसको कंपोनेंट नहीं करना है क्योंकि ये इसका y कंपोनेंट है, सारी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है, तो x कंपोनेंट 0 आएगा, सो आई विल राइट इट हियर V2 विल बी इक्वल टू x कंपोनेंट दैट इज 0, y कंपोनेंट दैट इज 0.4, दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड, यानी इसको J लिखना है, 0.4 J लिखना है, अगेन J पॉजिटिव लेना है क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में आएगा, इट विल बी लाइक दिस 0.4, ठीक है, ऐसे, तो ये अलोंग y एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस, तो इसको प्लस, सो M2 V2 लिखेंगे यहां, M2 V2, इट विल बी M2 इज 1.2 इंटू 0.4 J, ठीक है, सो इट विल बी 4 1 4 2 8, नहीं, इट विल बी 0.48 J, M2 V2 0.48 J, प्लीज यू नोट इट। अब इसके बाद C part is, again we have 1.5 kg 1 meter, ऐसे 1.5 kg ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, 37 डिग्री है इसका, ठीक है, 37 डिग्री। अगेन वी विल रिजॉल्व द सेम इनटू कंपोनेंट्स, आप खुद कर सकते हो, यहां मैं बनाऊंगा, यहां इसको आएगा ये वेलोसिटी का वेक्टर 1 मीटर पर सेकेंड, ये इसका एंगल 37 डिग्री है, बताइए कहां पे कंपोनेंट होगा, या इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, 1 cos 37 डिग्री, ठीक है, 1 cos 37 डिग्री, तो यहां आएगा ऐसे 1 sin 37 डिग्री, एक कंपोनेंट यहां, एक कंपोनेंट यहां, cos 37 अभी मैंने लिखा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5, 4/5 we can write it is 0.8, yes, तो यहां मैं लिख सकता हूं इट इज 3/5 और इट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड। ये जो है ये नेगेटिव लेना है, इसके साथ I लिखना है लेकिन माइनस I, इसके साथ J लिखना है लेकिन प्लस, ठीक है, तो
तो इसका मतलब है V3 विल बी इक्वल टू, यहां मैं लिखूंगा V3 विल बी इक्वल टू -0.8 I प्लस 0.6 J, ठीक है, यस। ठीक है, सो अब मैं लिखूंगा M3V3, ठीक, M3 कितना है, M3 is 1.5 here, M3 is 1.5 kg, M3V3 is here, so it means 1.5 into minus 0.8 I plus 0.6 J, ठीक है, कितना आएगा, हाँ 4/10 1.2, ठीक है, so it will be equal to 8, that means -4I, नहीं 1.5 into 8 40 ओवर 8 पॉइंट जिसका भी पॉइंट है, तो ये -1.2I 6 5 that is 6 5 30 6 5 9, तो ये माइनस प्लस 0.9J, ठीक है, M3V3, प्लीज नोट इट, जल्दी करो। चलिए अब थर्ड वन है, फोर्थ वन है, फोर्थ वन, it is 0.5 kg and 3 meter per second. M4 0.5 kg, ऐसे 3 meter per second, 0.5 kg. इसको भी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, we will not resolve it because it's acting along positive x-axis, ऐसे, ठीक है, तो इसके साथ I आएगा, पॉजिटिव I, so V4 will be equal to 3I plus 3I and M4V4 will be equal to M4 कितना है 0.5, V4 कितना है, that is 3, so it is 1.5I, please note it, and finally M5 कितना है, M5 is 1 kg, M5 is 1 kg, और इसकी जो है डायरेक्शन लाइक दिस, 37 डिग्री यहाँ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या, 2, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड। तो इसको रिजॉल्व करेंगे ऐसे, यहाँ एक कंपोनेंट, यहाँ एक कंपोनेंट, यहाँ इट इज 2 cos 37 डिग्री and it is here 2 sin 37 degree, 2 cos 37 4/5, it is 8/5, it is 1.6, here it is 2 into sin 37 degree, it is 3/5, ठीक है, so it will be 6/5 and it will be 1.2, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन, इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, के साथ -J आएगा और इसके साथ प्लस आएगा, सो आई विल राइट V4, नहीं V5 मैं लिखूंगा, V5 it will be equal to V5 I, that is plus 1.6I minus 1.2J, ठीक है, so M5V5 will be equal to M5 कितना है 1, so it will be -1 plus 1.6I, क्योंकि I के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, minus 1.2J, ठीक है, अब इन सारे को ऐड करना है,
समझ में आया कि हमने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया? नाउ ठीक है, इसके साथ आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। नाउ m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 प्लस m5 v5 कितना आएगा? m1 v1 is minus 1.2 I minus 0.9 j. m2 v2 it is plus 0.48 j. m3 v3 minus 1.2 I plus 0.9 j. m4 v4 plus 1.5 I. m5 v5 plus 1.6 I minus 1.2 j. फिलहाल ये करेंगे। अब I देखो कहां पे है, माइनस 1.2 I, ठीक है, माइनस 1.2 I यहां, माइनस 1.2 I, ठीक है, ये भी लिया हमने। तो यहां प्लस 1.5 I प्लस 1.6 I, ठीक। अब J वाला माइनस 0.9 J प्लस 0.48 J प्लस 0.9 J minus 1.2 J. It will be equal to 1.1, that is minus 2.4, minus 2.4, minus 2.4 I. तो ये देखो का प्लस 3.1 I, ये इन दो का पॉजिटिव। अब देखो माइनस 0.9 प्लस 0.9, ये खत्म हो जाएगा। 0.48 minus 1.2, so minus 1.2 तो 0.48, यहां 0 आएगा। दान z ये त्रूद का कान 7 4 7, yes, ये माइनस इट विल बी ये और ये, हाँ, इट विल बी माइनस 0.72 J। यहां देखो इट विल बी कहां ने 7 4 तो 7, 7 I पॉजिटिव, 0.7 I माइनस 0.7 माइनस 0.7 J, 7 2 है। अब मैं एक ही प्लेस को लूंगा 0.7, ठीक है। ये वाला I और ये J अलग से, ये 0.7 I है, यहां I यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0.72, लेकिन मैंने एक ही प्लेस किया 0.7, ठीक है। सो प्लीज नोट इट। यस, तो हमको ये m1 v1 m2 v2 वगैरह वगैरह निकला, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ I एंड J। नाउ VCOM, अब हम VCOM पे आते हैं। इट इज m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डैश डैश प्लस m5 v5, क्योंकि ये 5 तक ही है, डिवाइडेड बाय कैपिटल M, m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश प्लस m5, ठीक है। ये देखो इक्वेशन, ये हमने पहले डिराइव किया स्टार्ट। नाउ अगेन वी विल हैव 0.7, इट विल बी m1 v1 m2 v2, ये तो हमने निकाला अभी, इट इज 0.7 I माइनस 0.7 J डिवाइडेड बाय m1 कितना है, m2 कितना है, m1 कितना है, प्लीज से इट इज 1 1.2 1.0 1.2 1.5 m3 है ये, इट इज 0.5 0.5 और 1.0। तो ये m2 है,
M3 है, M4 है, M5 है। 5 5 10 गए 12 8 2 3 4 5 5.2। यस इट इज 5.2। ठीक है, तो ये VCOM हमको निकला। ठीक है, VCOM। तो ऐसे आप लिख सकते हो इसको वेक्टर फॉर्म में, या मैग्नीट्यूड इसको निकाल सकते हैं। VCOM इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जिस तरह आप लिखते हैं ना AX² प्लस AY², नहीं ऐसे लिखते हैं आप AXI प्लस AYJ प्लस AZK, ये वेक्टर कोई A होता है। हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ AX² प्लस AY² प्लस AZ²। बिल्कुल यहां A कितना, इसको ये डिवाइड करना है 0.7 या 7 पॉइंट, ये या मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं। VCOM लिखो आप 0.7 बाई 5.2 I माइनस 0.7 बाई 5.2 J। अब इसको पॉइंट के यहां एक ही प्लेस है, नीचे भी एक ही प्लेस को ओमिट कर सकते हैं। 7/52 I माइनस 7/52 J। ठीक है, इसके साथ I है, इसके साथ J है, कैंसिल नहीं हो जाएगा ये। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे इस इक्वेशन की वजह से। तो VCOM विल बी इक्वल टू 7/52 होल स्क्वायर प्लस माइनस 7/52 होल स्क्वायर। ठीक है, तो AX² प्लस AY², ये इक्वेशन हमने यूज किया। नाउ अगेन VCOM, अभी हम वेक्टर नहीं आएगा, अंडर रूट ऑफ will be equal to 7/52, 7 by it is minus plus 7/52, तो प्लस आएगा, so it will be twice 7/52 whole square। ठीक है, इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 7/52 मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट 2, सॉरी क्योंकि अंडर रूट 2 के साथ इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 7/52 मल्टीप्लाइड बाई 1.41। ठीक है, 1.41 ये हमने कैलकुलेट किया है, इट इज 9.8 डिवाइड बाई 52। इसको 1.4 ही लिखेंगे, 9.8 डिवाइड बाई 52, सो इट इज नियरली इक्वल टू 0.20। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को फाइनल वैल्यू निकला। ठीक है, अब हम इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो आपको पता है इट इज हियर, एक ये है एक VY है, ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमको जो इक्वेशन मिली VCOM वेक्टर फॉर्म में, इट इज 7/52 I पॉजिटिव माइनस 7/52 J ये नेगेटिव। इसका मतलब है ये पॉजिटिव लेना है, ये नेगेटिव लेना है। तो यहां 7/52, यहां 7/52। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट जो है हियर इट इज 0.20। ठीक है, अब से दे मेक एन एंगल अल्फा, दिस रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद वन ऑफ द वेक्टर। सो इसको मैं लिख सकता हूं VX, इसको मैं लिख सकता हूं VY। सो इट विल बी V tan, इसका स्लोप निकालेंगे, tan अल्फा विल बी इक्वल टू VX डिवाइडेड बाई VY। सो इट इज 7/52 डिवाइडेड बाई 7/52, इट इज 1। सो tan अल्फा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी इसका मतलब है 45 डिग्री डाउनवर्ड्स जो है इसका मेक एन एंगल 45 डिग्री विद वन ऑफ द एक्सिस। इसके साथ 45 डिग्री है, इसके साथ 45 डिग्री। तो ये डायरेक्शन हमको निकला, मैग्नीट्यूड भी हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, डायरेक्शन हमने निकाला एंगल 45 डिग्री। ठीक है, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। ठीक है, बेस ये है, तो परपेंडिकुलर, हाँ हमको लिखना था VY डिवाइडेड बाई VX। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये 7/52, 7/52 ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमने
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज यू नोट इट। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम। गिवन सिस्टम, ये सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ पुलीज यहां दिया गया है। पुलीज, एक पुली है, इसके ऊपर यहाँ एक मास लटका हुआ है स्ट्रिंग के अलोंग। हेयर अनदर, इट इज 2 kg, इट इज 1 kg, ठीक है, 2 kg एंड 1 kg। हाँ, you have to find ACOM, ACOM ये निकालना है। Now we will recall the equation. ACOM will be equal to M1A1 plus M2A2 plus dash dash divided by M1 plus M2, दो ही पार्टिकल्स है यहाँ। तो अब देखिए, यहाँ जो है इसका मास 2 kg है, इसका मास 1 kg है। ये ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, इट इज अ स्ट्रिंग। तो इसके हम एबीडी ड्रा करते हैं पहले 2 kg का। तो 2 kg का, तो इसका मास ज्यादा है, तो इसका ये मतलब है नीचे इसका mg दैट इज 2g, ऊपर इसका टेंशन t, और इसकी एक्सेलरेशन नीचे आएगी a, ठीक है। सो इक्वेशन क्या बनेगी? नेट फोर्स दैट इज 2g माइनस t, 2g माइनस t, इट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन दैट इज 2 टाइम्स a, दैट इज 2 टाइम्स a, ठीक है। हाँ, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब इसका आप एबीडी ड्रा कीजिए। इट इज 1 kg, mg इसका वेट होगा, दैट इज 1g, ऊपर इसका टेंशन t होगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम है, तो लेकिन इसकी एक्सेलरेशन जो है अपवर्ड्स होगी, क्योंकि इसका डाउनवर्ड्स का अपवर्ड्स, तो नीचे इसका a होगा, इसका ऐसे। सो a विल बी लाइक दिस। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी? तो जब a ऊपर साइड में, तो नेट फोर्स ऊपर साइड, किसका मतलब है t माइनस, तो यहां मैं लिखूंगा t माइनस 1g दैट इज g, इट्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास कितना है दैट इज 1 इंटू a, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर देंगे, वी विल ऐड दिस, ठीक है। तो ऐड करने पे t और t कैंसिल हो गया, 2g माइनस g, 2g minus g that is g, it will be equal to 2a plus a that is 3a, तो a will be equal to g by 3। तो एक्सेलरेशन किस आएगी? 2 kg की एक्सेलरेशन g by 3 है, डाउनवर्ड्स that is g by 3, इसकी अपवर्ड्स है that is g by 3, लेकिन हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। तो हमको जो मिला दैट इज हियर a1 हमको मिला और a2 हमको मिला, तो हमें निकालना है ACOM, a1 एंड a2। a1 इज दे आर हैविंग द वैल्यू सेम, मैग्नीट्यूड में ये सेम है, डायरेक्शन की अलग है, एक नीचे साइड में ऊपर साइड में है, इसको हमें पॉजिटिव लेना है, इसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड ACOM, प्लीज फाइंड ACOM, ACOM इट विल बी m1, m1 कितना है? से m1 हम लेंगे पॉजिटिव, दैट इज 1 इंटू a1 कितना है? g by 3 प्लस m2, m2 इज 2, तो ये a2 कितना है? दैट इज माइनस g by 3, इसलिए मैंने यहां माइनस लिखा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2, सो इट विल बी g by 3 माइनस, इट विल बी माइनस g by 3 डिवाइडेड बाय 3, इट विल बी माइनस g by 9, ठीक है। तो माइनस g by 9,
acceleration of center of mass will be minus g by 9. ठीक है, minus g by 9. Yes. तो हम लिख सकते हैं ACOM, it is g by 9. माइनस का मतलब है डाउनवर्ड्स, क्योंकि इसका जो ज्यादा मास है 2 kg इसको नीचे की तरफ जाता है, 1 kg ऊपर की तरफ जाता है. तो जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी डाउनवर्ड्स, दैट विल बी टुवर्ड्स द tilted towards the greater mass. तो g by 9 is the acceleration of center of mass. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो. So today we have gone through the motion of center of mass. ठीक, hope you have understood it. Thank you very much.